کیا بندہ کہہ سکتا ہے حضرت صاحب؟ لیکن حضرت کبھی اپنے اسلاف کو پڑھیں، دیکھیں، وقت نکالیں. حضرت دنیا کو تو انہوں نے منہ ہی نہیں لگایا ہے. اگر چاہتے تو باٹا سروس نہیں، ان کے لیے جنت سے جوڑے آ سکتے تھے. منہ ہی نہیں لایا، توجہ ہی نہیں کی. ایک ہی نام میرے خیال سے بڑا ہے، باقی کی لوڑ ہی نہیں رہے گی. حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کچھ بھی نہیں، بڑی سخت زندگی گزاری ہے. کوئی اعلیٰ کھانا نہیں، کوئی مرغ نہیں، کوئی مسلم نہیں، کوئی پجیا نہیں، کوئی تلیا نہیں، کوئی بالیا نہیں، کوئی یخنی نہیں، کوئی تندور نہیں. بلکہ کتابیں کہتی ہیں وہ پھل، وہ سبزیاں جو باسی ہو جانے کی وجہ سے، فریجیں جو نہیں ہوتی تھی، خراب ہو جانے کی وجہ سے لوگوں نے باہر پھینک دینی، حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پھلوں، ان سبزیوں کو اٹھانا، دھو کے پاک کرنا، گلا ہوا حصہ اتار دینا، جو تھوڑا بہت بچ جانا وہ کھا کے اللہ کا شکر ادا کر لینا. لیکن سبحان ربی الاعلیٰ کا حال کیا تھا؟ لکھا ہے عشاء پڑھ کے گھر آنا، حجرے میں آ کے حجرہ بند کر لینا اور خود کو مخاطب کر کے کہنا اویس آج قیام دی رات ہے، اور پھر ساری رات اللہ کے حضور قیام کا مزہ لینا. اگلی رات آنی، عشاء پڑھ کے آنا، حجرہ بند کر لینا اور خود کو مخاطب کر کے کہنا اویس آج رکوع دی رات ہے، مختصر سا قیام کرنا پھر رکوع میں، اور پھر ساری رات سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. اگلی رات آنی، عشاء پڑھ کے آنا، حجرہ بند کر لینا اور خود کو مخاطب کر کے کہنا اویس آج سجدے دی رات ہے، اور پھر ساری رات سر سجدے میں رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کے مزے لینا. اور پھر یہ سبحان ربی الاعلیٰ لے کہاں تک گیا؟ نبی کریم علیہ السلام نے اپنا مبارک جبہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا. اپنا مبارک جبہ مولا مرتضیٰ، مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا. فرمایا تمہاری اس سے ملاقات ہوگی، نام اس کا اویس ہوگا، یہ میرا جبہ اسے دے دینا اور ساتھ میری امت کی بخشش کی دعا بھی کروانا. سارا کچھ ہی بتایا ہے. سبحان ربی اللہ، ہوتے دے ہوتے ہی کلوتے ہی. ٹھیک ہے، آپشن ہے، اللہ اور دے گی. لیکن میں اتنی دور سے، شاہ صاحب نے کیونکہ والدین کے حوالے سے حکم فرمایا میں ادھر بھی آ رہا ہوں، لیکن میں جو اتنی دور سے آیا ہوں حضرت، میں آپ کے لیے پیغام لے کے آیا ہوں. پاجی بتا لو، پاجی میری نہیں، سارا کچھ ہے. اسکول بھی ہے، میٹرک بھی ہے، کالج بھی ہے، یونیورسٹی بھی ہے، کڑی بھی ہے، منڈا بھی ہے، کوٹھی بھی ہے، گاڑی بھی ہے، ساس بھی ہے، سورا بھی ہے، سالہ بھی ہے، پنوجا بھی ہے، گرمی بھی ہے، سردی بھی ہے، خوشی بھی ہے، غمی بھی ہے، سارا کچھ ہے. پوترا بھی ہے، دوترا بھی ہے، سورا بھی ہے، ساس بھی ہے، جوائی بھی ہے، کڑم بھی ہے، سارا کچھ ہی ہے. سچ بتانا اللہ ہے، اللہ میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی. اللہ قرآن کریم میں کہہ رہے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. مفہوم ایمان والے ہو، مال بھی دیاں گا، اولاد بھی دیاں گا، خیال تے دھیان ہے کریو کہ تے مال تے اولاد تانوں ساڈی یاد تو غافل. اور وہی ہوا، وہی ہوا حضرت، وہی ہوا. ہم سرکل سے باہر ہے. اللہ حضرت، میں اس دن میرے ایک دوست ہیں، وہ اس ٹائم آرمی میں بہت بڑی پوسٹ پہ ہیں، جرنل ہیں. چلے کیمرہ بھی لگا ہے، مناسب نہیں ہوتا، لیکن حضرت مجھے بڑا دھچکا لگا. حضرت جرنل ہیں، آپ ایسے جرنلوں کو زیادہ پاکستان سے تگڑا بندہ ہے، لیکن ان کی بیٹی کو طلاق ہو گئی. ساڑھے واسطے حالا جرنل بڑی طاقتور شے ہے، لیکن نصیب جرنل بھی خرید سکتا. طلاق ہو گئی. بہت ان کو دھچکا لگا، بیمار ہوئے، بڑے میرے محسن ہیں. ساڑھے واسطے کی ہے. اسی لیے تو وارث شاہ نے کہا تھا وارث شاہ مت وارث جانی متا بے وارث کر مار دے. وارث تو دی ذات ہے، لیکن جڑے اختیار سانو دیتے سن انہاں دے والے نال اسی ورتے ہی نہیں ہے. کیا کہا تھا؟ تی دیاں گا، پتر دیاں گا، تیری چولی پاواں گا. جو تینوں لگے نا کہ ہن بولن والا ہے، تو پھر ساڈا نام سکھانا شروع کر دے.
ताकि जदों बोले तो सारियां तो पहले साडा नाम लवे। सिखाया फरमाया 7 साल का हो जाए तो नमाज ली कहीं, हर नमाज में हजरत ये महाज खुला हुआ है। फरमाया 7 साल का हो जाए तो अच्छा 7 साल वाला ट्यूशन गया था, 3 साल वाला लैन गया, फिर आके मौलवी साहब ना लड़नगे। 7 साल वाला कितने गया है, वो ट्यूशन गया है, तो 3 साल वाला आंदे लैन उंगल पढ़ के, उन्हें 3 साल लुकिया ही नहीं है। फिर मैं 7 साल का हो जाए तो नमाज लगी, 7 साल वाले लिया नहीं, उन्होंने ट्यूशन टोरे है, तो 3 साल वाले लै आते ने, तेरी भी नमाज खराब करे तो नाल। हमारी मस्जिद में मसला रहा है, मैं इत्तिकाफ पे था, रोज़ हर मस्जिद नमाज चुनी है, जिन्हें आना हजरत 3 साल वाला 4 साल वाला नाल आंदे लैन, 7 साल वाला 8 साल वाला 9 साल वाला 10 साल वाला अकैडमी गया है। और फिर वो बच्चा छोटा सा, उसको क्या पता, कभी उन्हें इधरों लंघना, कभी उन्हें इधरों लंघना, कभी उन्हें फरमाया ही सानू इख्तियार देता सी लेकिन नहीं लियांदा। फरमाया 10 साल का हो जाए सख्ती की, नबी अलैहिस्सलाम दा मुबारक फरमान, मेरी मोहब्बत सिखाई, मेरी अहले बैत दी मोहब्बत सिखाई, कुरान दी तिलावत सिखाई, जो इख्तियार था वो वरतिया, ते जिदे ते इख्तियार ही नहीं सारे परेशान ने, की बनेगा की होएगा, वही बनेगा जो हो जाएगा, वही होएगा जो हो जाएगा। तेरा जिहड़ा काम है तू वो कर, इन्हां नूं नमाजी बना, इन्हां नूं अल्लाह अल्लाह दे रसूल दी मोहब्बत सिखा। मुझे अक्सर हजरत में जाता हूँ ना, तो अहबाब कहते हैं जी वो वालिदैन की जो ना ज़रा वो ना इस हवाले से गुफ्तगू करें, वो बच्चे आजकल ना वालिदैन का अदब नहीं करते, ज़रा इनको ना वालिदैन का अदब बता। मैं नहीं हुजूर, मैं ये तो कोई नहीं बोलना, मैं ये बोलांगा कि बच्चे वालिदैन दे बेअदब होए क्यों, ये भी तो बोलो ना, सारा कसूर होना भी तो ना कटो। मेरे पास हजरत वो जुम्मे में ना अहबाब, अब तो खैर नहीं आते, जब से मैंने वो क्लिप इस पे निकला, जुम्मे में ढेर अहबाब अपने बच्चों को लेके आए होते थे, जी दम कर दो जी, की होया है जी मोबाइल नहीं छड़ता। अल्लाह मोबाइल हथों तंग नहीं हो, तंग होया सथों होए कि वेख वेख के अखां दे पट्ठे कमजोर हो गए, कई बच्चियां दे ते आए बॉल खिसक गए, मुसलसल अख लाई रखन दी वजह ना वो आए बॉल ही खिसक गए। डॉक्टर ने कहा भी छड़ाओ मोबाइल, बच्चे छड़ते नहीं, वो कहा चलो मिसबाई साहब को दम कराइए छड़ दो। जुम्मे में ढेर हजरत वालिदैन अपने बच्चे लेके आए, जी दम कर दियो, मैं अज तक किसी बच्चे दम नहीं किया। मैं कहना पुत्र तू इधर हो, अबू जी इधर आओ, दम तुहाडा बनता है, उन्होंने मैं कहता करा बेचारे, इनू मोबाइल कोई ये तेरे को बीमारी लगी है, क्योंकि हजरत साहब हमारे बच्चों ने कब हमारे हाथ में कुरान पाक देखा है, ये भी कुरान पाक पढ़ लेंगे। साढ़े बच्चियां ने किदू साढ़े हाथ च तस्बीह वेखी है, साढ़े बच्चियां ने किदू साढ़े हाथ च दरूद ताज वेखी है, साढ़े बच्चियां ने किदू साढ़े हाथ च दरूद लखी वेखी है, ये भी पढ़ लेंगे। जो उन्होंने साढ़े हाथ वेखे उन्होंने भी पढ़ लिया। अबू मोबाइल, अम्मी मोबाइल, दादा मोबाइल, दादी मोबाइल, नाना मोबाइल, नानी मोबाइल, नानके गए हजरत जी मामी नूं मिलणगे मामी मोबाइल, हैं जी मासी नूं मिलणगे मासी भी मोबाइल, छोटी मामी नूं सलाम लैण गए वो भी मोबाइल, मामे दी ढीक रही, मामे ने भी घर आके हथ धो के सारे तो पहले कढ़ लिया मोबाइल, दादके गए दादा मोबाइल, दादी मोबाइल, ताई नूं सलाम करनगे ताई मोबाइल, चाची नूं मिलणगे चाची मोबाइल, फुफी दे कमरे गए सलाम करन फुफी मोबाइल, ताए ते चाचे नूं ढीकदे रहे, वो आए तो उन्होंने भी फड़ लिया मोबाइल, मोबाइल 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 मोबाइल। ते मियां साहब कहंदे रहे लोए लोए फर लै कुड़ी, होए पर लो भाई, होए पर लो दीन सिख लो, रवो इन्हां दे विच, इन्हां दे हक अदा करो, लेकिन हजरत अल्लाह दी जगह इन्हां नूं ना दो, अल्लाह दा टाइम इन्हां नूं पुत्र असीं टाइम ओहदा ए दे के इन्हां नूं रहे हां। हजरत जी तू जोर दी नमाज नहीं पढ़दे ते की करने हुन्ने आ, इन्हां जी किसी गल बैठे हुन्ने आ, जो असर दी नमाज नहीं पढ़दे इन्हां जी किसी नाल फिरदे टुरने हुन्ने आ, टाइम अल्लाह दा सी दे, लेकिन पुत्र याद रखी जो सानू इन्हां दे टाइम दी लोड़ पैनी है तो सानू इन्हां ने देना। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ही दबन तो बाद ऐनी देर ठहरियो, ऊंट ज़बा करके कल ला के टोटे करके गोशत बना के जिनी देर च वंडिया जाए, कम से कम 6-7 घंटे ठहरदा कोई।
और फिर हजरत मैं तो एक तालिबे इल्म हूं ना, मैं सीखता रहता हूं, और जैसे जैसे गौर व फिक्र करता हूं तू हजरत अपने मामले समेटन रहा ਉਹਨੂੰ ਦਈਏ ਟਾਈਮ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਬਸ ਉਨਾ ही दईए, ਉਹਦਾ टाइम ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ना दो। मैं रोज सीखता हूँ। जनाजा हो गया, आज भी जाहिर है हम साले सवाब की महफिल में गोरसी साहब, अल्लाह उनकी बख्शिश मगफिरत करे। जनाजा हो गया, बगाने टुर गए, हूँ रह गए कि कौन रह गए, अपने रह गए। दब दूब के जो घर अपने आए तो सारे तो पहले अपने ने भी की किया, किसी ने भी नहीं बोलना, अपने ने भी की किया। हजरत साहब है जी एंड किसी ने मेरे लिए एक वेले की रोटी भी छड्डनी, तू इन्हां लई अल्लाह छड्डिया, तू इन्हां लई अल्लाह छड्ड छड्डिया, तेरे लिए इन्हां ने एक वेले की रोटी नहीं छड्डनी है, तेरा मुल पैना ही एंड ते। इसका मतलब ये नहीं कि आज के बाद इनसे हम बुरा सलूक करें, नहीं, सलूक चंगा करना, लेकिन सियाणे हो जाओ। किसी ने भी एक वेले की रोटी भी छड्डनी, बगाने टुर गए, अपने रह गए सारे। चलो यार कम अज कम इतना ही कोई ऐलान कर दे हो यार, इत्थे ना खाओ, चलो किते साइडे जाके खाइए, साडा भरा बहुत होया है, साडा खानी है। एक वेले दी रोटी। फिर मोहम्मद बूटा गुजराती रो पिया, रो के कहंदा ओ जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, अज होना भी बाजियां हारियां नहीं, ओवे ओ चोल कांडे नहीं सारे बह गए, ओवे ऐ ही एंड। बड़ा तू कहना है मेरा ये ते मेरा वो ते मेरा इंज ते मेरा इंज, होवे ओ ही। किसी ने जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, अज होना भी बाजियां हारियां नहीं। मुहम्मद बूटिया झूठा ही जग सारा, कमली वाले दियां सच्चियां यारियां। कुर्बान जाऊं जी। फिर आला हजरत ने फिर दसिया भी, आला हजरत फिर आला हजरत इन्होंने छड़ आना है, इन्होंने चोल खाते होना बह के। आला हजरत क्या कहते हैं, आप फरमाते हैं जे तू कर के गुलामी गया, जे तू कर तो फिर की कर्म होएगा। नज़र रूह में आसानी दे, कलिमा याद दिलाते ये शरीफ आवरी होएगी अपनी मौजूदगी, तेन कलमा पढ़ा के टोरनगे अगे। इन्होंने टुर जाना है, जाके चोल खाते होंगे सारे। मरकद में बंदों को थपक के मीठी नींद सुलाते ये हैं, चोल खाने ने सारे ने जाके। मरकद में बंदों को थपक के मीठी नींद सुलाते ये हैं, बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं। माँ जब इकलौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये हैं। मेरा तो क्योंकि रोज का काम है हजरत, चलो आ गए नहीं सारे ही आ गए, और गल सुन लो तुसी, साडा मोल पै जाएगा। मेरा रोज का काम है। क्या इशारा आला हजरत ने दिया, माँ ना बड़ा प्यार करना है, उफ नहीं करना, सी तक नहीं करना, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जगह मैं एक तालिबे इल्म हूँ, मैं सीखता रहता हूँ। नाशी पढ़ी जा रही है, यहाँ एक कुर्सी लगी है, दो लगी हैं, मैं इधर बैठा था, नात खान इधर बैठा था, वो कलाम पढ़ रहा है, वो कलाम पढ़ रहा है कि ये सब तुम्हारा करम है कि बात अब तक बनी हुई। वो पढ़ता पे मेरे ये तो मैं स्टेज लगा है, मेरे सामने बंदा सलूट पे आया। अच्छा ए वाले कान च कह छड़दा ना, तो मैनू पता नहीं लगना की क्या है। उन्हें कहा भी ए वाले कान च, फिर उहदे ए वाले कान नाल मेरा ए वाला कान सी। उन्होंने आके कहंदा दो शेर मां दी शान। मैं सोच में पड़ गया, यार जिक्र ते नबी पाक दा होण दिया सी, इनू मां के तू याद आ गई है। ये उम्मत का हाल है, जिक्र ते सोहणियां दा पे हुंदा, इनू मां किहड़े वेले याद आ गई है। ये हमारा हाल है, ये हमारा। चलो पुत्र आ गए सारे, ये हमारा। अच्छा चलो ठीक है यार, व्हाट्सअप आए ने, तुसीं आंदियां कह छड़ो अरे जी कोई याद रहा तो कोई दो शेर मां ले भी पढ़ छड़े, लेकिन स्पैशल आना नात बंद करवानी और उससे कहना सानू दो शेर मां दे सुनाओ, खुदा दा कहो क्यों ले तरह दा प्रोग्राम बनाया। बड़िया मामले च दरगुजर, बड़िया मामले च पर्दा पोशी, इत्ते माफी
नहीं किसी को, नाशी पड़ी जा रही है। वो जब सहाबा अलैहिम रिदवान को देखता उनका तरीका क्या था, जब भी हाजिर होना तो आके अर्ज करना फिदा का उम्मी 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 व अभी या रसूल अल्लाह, सोनियो मां भी कुर्बान प्यो भी कुर्बान। 2026 वाले की करते ने नाता बंद करवा के सुनते की ने को खुदा दा खौफ खाओ सुनिए। जिसका मैं कह दो यार जे कोई जरूरी नहीं, कोई फर्ज नहीं, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਚ ਲੰਘ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਚੱਲ ਜੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਪੜ ਛੜੀਆਂ ਤੇ ਦੋ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र रुकवा के बंद करवा के ना छुड़वा के उसको कहना मां ओए तेनू भी लितर कड़क जाने नहीं, पता नहीं नाल किनू किनू कड़क जाने। मैं फिर वही कहूंगा, हमने रूहानी तरक्की हजरत ये मेरे जुमे में अक्सर होते हैं, इन्होंने पूछ लो, मैं जो कितने गुफ्तगू करना मैं कहना किताब खोलना वा तो पहला सफ़ा मसा पढ़िया जाता तो मैं बंद कर छड़ना यार वो क्या थे। और हजरत इस कदर कल्ब की सफाई उनको मुयस्सर थी, इस कदर उनके सीने सोने थे, इस कदर उनके सीने कुलूब मुसफ़ा थे, मुनज़्ज़ा थे उनके कुलूब कि 92 बार हालते बेदारी में नबी पाक का जलवा देखा। और किताब लिखने वाला कौन है? हजरत शाह वलीउल्लाह। किताब का नाम क्या है? अनफासुल आरिफीन। कभी वो दिन थे अनफासुल आरिफीन, असी इंडिया के किसी जंगल च बह के कुरान शरीफ पढ़ना तो नबी पाक ने साडा कुरान सुनने लई तशरीफ ले आना करना। किताब अनफासुल आरिफीन, शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाहि ताला। और पढ़ कौन रहा था कुरान पाक? शाह अब्दुर रहीम रहमतुल्लाह, आपके वालिद गिरामी। कभी वो भी दिन रहे हैं हजरत कि हमने जाके सलाम अर्ज करना, आपने इतनी ऊंची जवाब अता फरमाना कि पूरी मस्जिद नबवी शरीफ ने उस जवाब को सुनना। क्योंकि टाइम कभी वक्त आया तो मैं ये समझे मौजूद हार है, मैं बोलूँगा इसी मौजूद को। मैं लगा समेटन 15 का जीन सी 15 तो मैं समेट देंगे, आजमाइश नहीं करनी ताड़ी। मैं हजरत ज़्यादा दूर नहीं आपको ले, इमाम जलालुद्दीन सयूती, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, आज हैं पीछे को 40 50 60 70 साल पीछे चले जाते हैं। हमें ये रंग मुयस्सर था मदीना तैयबा हाज़िर होना, वापस आना, लोगों ने मिलने के लिए आना और आके पूछना भाई मदीना पाक तो आए हो, मिसबाई साहब को गल नहीं सुनाओ। तो पता फिर असी गल की सुनानी, मक्के की फिजाओं में तैबा की हवाओं में हमने तो जिधर देखा सरकार नजर आए। ये भी रंग सच दसियो जी, शाह साहब बैठे इन्होंने पैरी हथ ला के तुहानू ते अपने आप मुखातिब कर रहे हो। सच दसियो 2026 च कोई 25 को वापस आना रही की गल सुना सकता है? हम आके सिर्फ ये बता सकते हैं होटल दूर सी कि नेड़े सी। हम आके सिर्फ ये बता सकते हैं होटल माठा सी के। हम आके सिर्फ ये बता सकते हैं अल बेग किन्नी वारी खादा। हम आके सिर्फ ये बता सकते हैं मैनू केड़ा मिलन आया तो मैं किनू मिलन गया। और ना होटल गया से, ना अल बेग खान गया से, ना तो किसी नू मिलन गया से। वो जिन्हां दी बारगाह च गया से कोई गल उन्हां दी सुना, उन्होंने ले मजे। मक्के की फिजा तैबा की हवाओं में हमने तो जिधर देखा सरकार नजर। 2 मिनट रह गए। शाह साहब हैं, बड़े करम है जी, सादात का मोहब्बत करते हैं। शाह साहब ना छुपाते हैं अपना, बहुत ज्यादा छुपाते हैं। तो जे कितने 4 बंदे बह भी जान तो मलामत है बड़ी ज्यादा। इस तरह का काम करेंगे कि अगला बंदा पैर कड़ चढ़न के पड़ के एक बार
बहुत मलामत है तबीयत में, लेकिन गैर शरी मलामत भी नहीं है। उन अगले नूं नहीं पता मुकम्मल नहीं उन्होंने दीन आंदा, अच्छा पढ़े भी नहीं है कोई भी। एक होता ना कि मसलन मैं आखा भाई मैं पढ़े आवां लेकिन पिंड वाले कहनी और असीं तो कभी मिसबाई साहब मदरसे वेखे ही नहीं है। वो खुद भी कहते हैं मैं कोई नहीं पढ़िया, पिंड वाले भी कहते हैं कि असीं कभी शाह जी नूं वेखिया है, आपे भी कहते हैं। लेकिन हज़रत जी इंग्लिश बोलें तो अंग्रेज़ रान, अरबी बोलें तो अरबी रान, जिस मर्जी मौजू पे गुफ्तगू करें, सर्फ न जड़ी मर्जी किताब खोल दे, मुश्किल तू मुश्किल खोल दे, आसान तू आसान खोल दे, सिराजी खोल दे। मैंने एक दिन अर्ज की मैं शाह जी आप ही कहते हो मैं नहीं मदरसे गया, तो फिर करम नवाजियाँ कितों होए स्पेशल जवान बच्चों के लिए, स्पेशल जवान बच्चों के लिए, स्पेशल जवान बच्चों के लिए। मैं शाह जी फिर करम कितों है? फरमाते हैं 3 दिन और 3 रातें मैंने मुतवातर गारे हिरा शरीफ में गुजारी, थले नहीं आया, ऐना काबे जमजम ते खजूर लै गया कि बस रोज़ा रख कते ते रोज़ा खुल गया। 4-5 दिन लगा के अपने वजूद को ऐसा कर लिया कि पेशाब या पखाने की हाजत ना होए, मैनू थले ना आना। 3 दिन कहते हैं उत्ते ही रहा, रोज़ा रखिया, नमाज़ां सारियां उत्ते ही पढ़ियां। फरमांदे जदों तीजा दिन पूरा होया तो मैं थले आन डिया ते की सी जिहड़ा मैनू नहीं सी आंदा है, कोई लैण वाला भी तो होए ना। अब तो दुख ये है कि अगर उम्मत गारे हिरा शरीफ चली भी जाए तो तस्वीर बनाने के लिए जाती है। वो तो शाह साहब का ज़ौक था, हजरत 3 दिन 3 रात लगाए, बाकी के पुत्र को लैन वाला होए तो 3 मिनट भी गारे हिरा शरीफ दे बड़े ने। खुशबू आती है वहाँ से नबी करीम अलैहिस्सलाम। मुख्तसर करने लगा हूँ, फिर कभी मौका हो। मैं शाह साहब जो मुलाकात होनी, मैं शाह जी ने एक ही गल अर्ज की थी, मैं शाह साहब आप नाल किते मदीना पाक जाना है तो हमेशा आदत दे वो आप जाया करें, आपको पता है आदाब क्या है। मनी हुजूर अन्य की पता, मैं आप दे नाल जाना है, अच्छा चलें कभी देखेंगे। मैं हजरत इंग्लैंड मुझे शाह साहब की कॉल आ गई, 16 मिनट हो गए। मैंने फ़ोन उठाया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, किधर हैं आप? मैं शाह साहब मैं तो इंग्लैंड हूँ, तो मैं मदीना पाक में आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, कमरे में आपके लिए जगह भी रखी है। मैं शाह साहब मैं तो इंग्लैंड आते फिर आज दी रुखसत दे दो, कल मैं हाज़िर हो जाना, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपका। मैं टिकट ली है, मैं ही पहुँच गया। अब क्योंकि मुस्तहब है, गुसल करो, मिसवाक करो, खुशबू लाओ, सोने कपड़े पाओ, नबी पाक दी बारगाह जाने सल्लल्लाहु अलैहि। दुकाना पढ़ो, सारा कुछ ही कीता सी टुर पे। वहाँ आँखों की बड़ी आजमाइश है, बीबियाँ वाल होंदियां ने, पर्दा नहीं करती, करना चाहिए अलग। आँखों की बड़ी आजमाइश। मेरे को रस्ते च किते अखां गंदियां हो गई और वाल होइयां, शैतान या मैं आप शैतान बनया था। अच्छा अख वाले फिर अख वाले अंदर नहीं गए, पता सी अखां अंदर। वो जो गुंबद शरीफ के बिल्कुल सामने वजू खाना है ना, वहाँ बैठ गए जाके। और मुझे कहते हैं आप जमजम 2 गिलास लेके आए। मैं गया 2 गिलास लिया, शाह साहब ने पेश किया। शाह साहब लैके ना अखां धोन लग पे। मैं मौलवी आदमी हाँ, मैं सोची पिया यार रस्ते च कुछ इंज दा नहीं होया कि अखां धोनियां पैण। कोई नेरी नूरी भी नहीं चली क्योंकि अखां च कोई किरक शिरक पई होए। तो साड़ियाँ अखां दे कित्थे अड्डे नसीब के मदीना पाक दी पाक किरक साड़ियाँ अखां च पवे, तो जे पै जाए तो धोइए ना, पता नहीं वो कैफियत सी ना। तो मेरे हाल किते ध्यान आप भी धोएं, मैं फड़ मैं भी धोन लग पे। वो मेरी सोच होर वध गई कि मेरी अखां नूं धोण डे। बहरहाल थोड़ी देर बाद ना वो आबे जमजम अपना पीना शुरू हो गया। मुझे देख के कहते हैं आप भी पिए, मैं भी पीने लग पाया। उन हजरत तो सी टुर पे। अब जाने वालों को पता है कि आप सीधा नहीं बाबू सलाम शरीफ जाएंगे, उन्होंने ना एक जिग जैग बना दिया हुआ है, आप वो तय करेंगे और आप फिर जाएंगे बाबू सलाम शरीफ तक। हम ना वो गुजर रहे हैं जिग जैग से। मेरे दिल में ख्याल है शाह जी ने अखां नहीं रहा गया, मैं रस कर छिड़ी। मैं शाह साहब वजू तो कमरे से बना के आए थे, तो आंखें क्यों धुलवाई? खलो गए, अखां जथरू आ गए, तो मेरे मोंडे ते हथ रख के फरमान लगे फिर अंदर गंदी ही लेके जानी थी। अंदर वो हजरत साहब मेरी जान निकली है। मैं बड़ा ही रोया। फिर मैं क्या होए असी होरे पता नहीं अंदर की ले जाते रहे। पता क्यों कहते फरमाते ने इन आँखों को उन्होंने देखना था, इन आँखों ने उनको देखना, इन आँखों को हजरत अबू बकर ने देखना, इन आँखों को फारूक आजम,
ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਦਿਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਟਲ ਤੇ ਅਲਬੇਗ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ, लेकिन उन्होंने मजे केड़े लुटे। मक्के की फिजा तैबा की हवाओं में हमने तो जिधर देखा सरकार। मैं थी गल मुकाशन लगा जे फिर लोए 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 ओए लोए लोए ओ पर लै कुड़िए जे तुद पांडा भरना शाम पई। गौरसी साहब ली ते शाम पै गई ने, मेरी वालिदा ली ते शाम पै गई, मेरे वालिद ली ते शाम पै गई। शाम पई बिन शाम मुहम्मद ते कर जांदी ने डरना ते उज़र बहाना चलदा नहीं ते जो आखे सो करिए ओ डीगर नूं जे टहना हो कानू खुल खुल मरिए। हुजूर एंडा ही ये टहना है, हुजूर एंडा ही ये टहना है, एंडा ही एक टहना है। ओए अल्लाह वाले ओ है ओ घोल नहीं जे बंदा बह के पिया वेखे कि केड़ा पहलवान ढाएगा। ऐस घोल दा एंड ते मैं ही टहना। पुत्रा हुण ढह जाइए मुल पै जाऊगा, हुण भाजी ढह जाइए मुल पै जाएगा जी। ओ वीरा हुण ढह जाइए मुल पै जाएगा। दसो पुत्र जेड़ा ढाया किदा नहीं पिया है? मियां साहब दा पिया कि नहीं पिया है? हुजूर पीर मेर अली शाह साहब दा पिया कि नहीं पिया है? इमाम बरी सरकार पिया कि नहीं पिया है? दाता साहब मुल पिया कि नहीं पिया है? हुजूर बुल्ले शाह साहब पिया कि नहीं पिया है? मुल पै जाएगा जी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह जी, सदात भी हैं, मशाइख भी हैं, उलमा भी हैं, बल्कि उलमा बनाने वाले भी हैं। ठीक है जी। तो इन बुज़ुर्गों की बारगाह में तो मैंने सबक सुनाना है। ठीक है, असल में गुफ्तगू आपसे है और ख़ुद से है। बस अल्लाह के हुज़ूर दुआ गो अल्लाह में अमल करने की तौफ़ीक अता फरमाए। जितने भी स्टेज पे बुज़ुर्ग हैं इन्होंने मेरा ये सबक सुनना है, गुफ्तगू आपसे है। ठीक है जी। एक बार ज़रा मोहब्बत से दुरूद पढ़ें। दो तीन बातें मैंने गोश सलातु सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। मैं किबला की बात से बात आगे निकालूंगा। काम करना है जी, ज़रूर करना है, लेकिन याद रखना है जी, काम भी वही होगा जिसमें इखलास होगा। क्योंकि वो कदम जो इखलास से नहीं उठ रहा वो आगे नहीं जा रहा, वो पीछे जा रहा है। और आज इखलास का बड़ा फुकदान है। इखलास लाए इधर अभी होने जड़े मोबाइल शोबाइल ने ना ज़रा बंद ही कर लो। बस आप मैंने कोई बस दो तीन बातें, ज़्यादा नहीं मैं आपसे करूँ। इखलास जी, ठीक है जी। और हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला, क्योंकि ये गुनाहगार तसव्वुफ़ का एक छोटा सा तालिब इल्म है, कुछ कोशिश कर रहा हूँ सीखने की, अल्लाह बस रहम फरमा दे। आपसे एक दिन सवाल हुआ कि हज़रत आपने इखलास कहाँ से सीखा? क्योंकि इखलास नहीं होगा फिर तो बात नहीं ना बनी, बात तो इखलास से बनती है। और फिर हज़रत जुनैद की बात कैसे बनी कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल भी लिखते हैं, शौकत संजर व सलीम तेरे जलाल की नमूद है। हुजूर की बारगाह में नात पेश कर रहे हैं, शौकत संजर व सलीम तेरे जलाल की नमूद, फ़क्र जुनैद व बा यज़ीद तेरा जमाल बेनक़ाब हज़रत। बहुत बड़ा नाम है जुनैद। आपसे सवाल हुआ हज़रत आपने इखलास कहाँ से सीखा था? तो जो सवाल करने वाला था ना, आप आगे से फरमाते हैं, भाई मैंने तो इखलास अपने इलाके की नाई से सीखा था। अर्ज़ की गई हुजूर इखलास और नाई से सीखा? आपने फरमाया हाँ। अर्ज़ की हुजूर वो किस तरह?
आप फरमाते हैं फ़क्र का ज़माना था और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं अपने बाल ही कटवा लेता। फरमाते हैं बाल बहुत बड़े हुए थे। कहते मैं उन बड़े बालों के साथ ही ना अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुआ तो आपने मुझे फरमाया जुनैद जाओ पहले बाल कटवा के आओ। फरमाते हैं अब तो हुक्म शेख भी था लेकिन पैसे थे ही नहीं। अब फरमाते मैं नाई की दुकान पे चला गया, वो किसी के बाल काटने में मशगूल था। तो अब फरमाते मैं खड़ा हो गया सामने जाके, जब वो मेरी जाने मुतवज्जे हुआ ना तो मैंने उसे अस्सलाम वालेकुम कहा, उसने जवाब दिया। तो आप फरमाते मैंने नाई को कहा, मैंने कहा भाई बात सुन, तूने बड़े बाल पैसे लेके काटे हैं, आज पहली बार मेरे अल्लाह के लिए काट दे। आप फरमाते उसने ये भी नहीं कहा कि अच्छा काट के काटूंगा। दुकान से नीचे आ गया, मेरा हाथ पकड़ा, मुझे ऊपर ले गया, जिसके बाल काट रहा था उसको उठा दिया, कुर्सी पे मुझे बैठाया, मेरा सर चूमा और बाल काटने शुरू कर दिए। अब रोता जा रहा है और साथ कहता जा रहा हाँ हाँ मैंने बड़े बाल पैसे लेके काटे हैं, आज पहली बार अल्लाह के लिए काट रहा हूँ। हजरत फरमाते हैं मैं भी बैठा नियत कर रहा था, अच्छा कभी अल्लाह वक्त लाया ना और अल्लाह ने माल दिया तो मैं भी तुझे बदला ज़रूर दूंगा। अब फरमाते हैं फिर वो वक्त आया कि अमीर शहर भी मेरा मुरीद हुआ, अमर बिन उस्मान मक्की मेरे मुरीद हुए, हज़रत अबू बकर शिबली मेरे मुरीद हुए, अबू बकर वास्ती मेरे मुरीद हुए रहमतुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन। फरमाया बड़ा माल आया। अब फरमाते मैंने एक थैली बनाई और मैं उसकी दुकान पे चला गया, बूढ़ा हो चुका था। अब फरमाते मैंने सलाम करके कहा मुझे पहचाना? उसने कहा आप जुनैद बगदादी हैं। अब फरमाते मैंने कहा याद है एक बार तूने मेरे अल्लाह के लिए बाल काटे थे? वो आगे से अर्ज़ करता है हाँ शेख याद है। अब फरमाते मैंने थैली आगे बढ़ा के कहा ये ले फिर ये उसका बदला है। अब फरमाते वो नाई मुझे आगे से कहता है शेख मैंने तो समझा था आप बहुत बड़े सूफी बन गए, आपको तो अभी तक तसव्वुफ की इब्तिदा भी नहीं आती है। फरमाते मैंने कहा वो कैसे? तो फरमाते वो नाई मुझे आगे से कहता है जुनैद जो काम अल्लाह के लिए किया जाए ना फिर लोगों से उसका बदला नहीं मांगते हैं। इखलास नहीं है पुत्र। मैं किसी की जी बात मैंने पहले कहा जी कोई ना, मैं आपको सबक सुना रहा हूँ सबको, मैं आपसे मुखातिब हूँ, मेरा भी हाल है वे मैं भी आवाना तो मैं भी कड़ी कड़ी नज़र पहले फ्लैक्स वेखना मेरा नाम थले होते जिन्हें कढ़ना सी जरूरत तो आप ही फंस गया, कौन कढ़ेगा है? जिन्हें कढ़ना सी वो आप ही फंस गया, उन कौन कढ़ेगा हुजूर दी उम्मत में? इखलास मत। और अब तो मैं कोशिश करता हूँ जी नाथ हाँ पढ़ रहा हो तो मैं जाऊँ ना, मेरा दिल करता है ना पढ़ के तले बा जड़ा पढ़ देखी भी ओए वो लजपाल है तू को काम इस तरह का कर रहा तो ना तुझे उसी रात नवाजें तो मैं जुर्मदार हूँ। हकीकत है पुत्र, वो हमारे बड़े थे जिन्होंने हालत बेदारी में 72 बार हुजूर को देखा। सैयदना अब्दुल अजीज़ दब्बाग, हज़रत शेख अबुल हसन खिरकानी उलमा बैठे हैं, मुहद्दिस हदीस की सेहत के हवाले से जहाँ जाके फंस जाते थे इन बुज़ुर्गों से रुजू किया करते थे। क्या आज हो गया? क्यों हुजूर नबी अलैहि सलाम और उम्मत में इतनी दूरियाँ बढ़ती जा रही हैं? कहाँ गई वो बातें, कहाँ गई वो रातें, कहाँ गई वो सरगियाँ? वजह जैसे हजरत कह रहे थे पहली गल काम कोई नहीं जो काम में तो इखलास कोई, काम भी और इखलास भी। अरे जी मैं तो ना एक विच ते ना 11 विच ही, उलमा की शफकत है ये मेरी सुन लेते हैं। वो लोग हजरत जिनकी तरबियत हुजूर नबी अलैहि सलाम ने फरमाई, जिनकी तरबियत सहाबा ने की, जिनकी तरबियत ताबईन ने की, देखो कितना तकवा था उनमें। हज़रत सैयदना अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला ये वो सहाबी हैं जिन्होंने मिस्र फ़तह किया था। अब फरमाते मिस्र तो फ़तह हो गया लेकिन मिस्र के बादशाह का ताज नहीं मिल रहा था, ताज बड़ा कीमती था और वो ताज हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इल्म में भी मौजूद था। फरमाते मैं बड़ा परेशान था कि हज़रत उमर फ़ारूक को क्या जवाब दूँगा, भाई क्यों इतनी डील हुई, किधर गया वो ताज? उस ताज से इस्लाम की कितनी खिदमत होनी थी, कितने काम होने थे, किधर क्यों इतनी गफलत बढ़ती गई? अब फरमाते मैं बड़ा परेशान खड़ा था तो क्या देखा एक शख्स मेरी तरफ चला आ रहा है जिसके हाथ में एक थैला है। अब फरमाते जूती टूटी हुई थी, कपड़ों पे पैबंद लगे थे और एक काम उसने कर रखा था, वो क्या, उसने अपने अमामे से अपना मुंह छुपा रखा था। अब फरमाते वो आया, उसने अस्सलाम वालेकुम कहा, थैले में से ताज निकाला मेरे सामने रख के फिर सलाम कह के वापस चल दिया। अब फरमाते सख्ते की कैफियत थी, जुत्ती टूटी है, कपड़े पाटे ने, जे ना भी ताज वापस करे तो मैनू तो पता ही नहीं ताज है कि कल मैं किसको जाके कहता,
टूटी जूती, कपड़े फटे, फिर भी ताज वापस लौटा गया। अब फरमाते जब मैं उस सकते की कैफियत से बाहर निकला ना, वो थोड़ा दूर जा चुका था। अब फरमाते मैंने पीछे से पुकार के कहा, ओए खड़ा हो। वो खड़ा हो गया। अब फरमाते मैंने कहा मुंह मेरी तरफ कर, उसने कर लिया। अब फरमाते मैंने कहा कपड़ा हटा और मुझे दिखा तू कौन है। अब फरमाते उसने कपड़ा नहीं हटाया, तो मुझे आगे से कहता है अमर बिन आस, मैंने तेरे लिए ताज वापस नहीं किया कि तुझे अपना मुंह दिखाऊं, और जिस अल्लाह के लिए मैंने किया है उसको ज़रूरत ही नहीं मुंह दिखाया जाए, वो मुझे भी जानता है, मेरे बाप को भी जानता है। ठीक है जी, इखलास पुत्र, बड़ा फुकदान है इखलास का। इखलास हर अपने अमल को, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, छन्नी से गुजारो। हजरत मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों करने जा रहा हूँ, क्या है मेरा मकसद, क्या है मेरा मकसूद, क्या है मेरा मतलूब, मैं क्या चाहता हूँ अपनी समझ। पुत्र छन्नी से गुजारो अपने अमल को, फिर देखो हाँ करम होता है कि नहीं था। अब देखो जी, जिन्होंने ज़रा छन्नी से गुजारा, ये लाहौर में एक बुज़ुर्ग हुए हैं हज़रत पीर सैयद नादिर हुसैन शाह गिलानी। भाई ये मर्जी है, हैं जी, ये मालिक की मर्जी है, ये अपना कोई इख्तियार नहीं होता जी। जिसे चाहे होश में लाए तू, जिसे चाहे मस्त फिराए तू ही होश दे, तू ही बेखुदी, तेरी शान जल्ला जलालुहू। ये उसके रंग है जी, चाहे जुनैद बनाए चाहे बहलोल बनाए, ये मर्जी है, ये किसी का इख्तियार नहीं होता जी। जिसे चाहे होश में लाए तू, जिसे चाहे मस्त फिराए तू ही होश दे, तू ही बेखुदी, तेरी शान जल्ला जलालू। ये कोई इख्तियार नहीं होता जी, ये उधर से करम होता है। और हज़रत बाबा साहब फरमाते हैं जे यार फरीद चाहे करम करे, ऐबा वालियां दे मत्थे लालड़ियां दे, ये उधर से होता है पुत्र। जो दो तकवा से होती नहीं दुआएं मुस्तजाब, अदाएं हैं कुछ खास खास, वक्त हैं कुछ खास, ये उधर से होता है पुत्र। अब सुनो, इखलास के रंग देखो हजरत, इखलास का एक अपना जहां है, इखलास की एक अपनी दुनिया है, इखलास की एक अपनी बस्ती है हजरत। नादिर हुसैन शाह गिलानी मारूफ नहीं हुए इतनी, आपकी तसानीफ भी हैं, वो भी इतनी मारूफ नहीं हुई, मुरीदीन तक महदूद रह गई हजरत। मैं लाहौर जाना हुआ तो साहबजादा साहब ने किताब हजरत लिखी हुई मुझे भी इनायत की, बस थोड़ी सी ढील हो गई, मुझसे खो गई हजरत। बस वो पहली सीट पे बैठ के मैंने वो आगे जो पढ़ सका ना, बस मैंने वही पढ़ा। वो जो पहले ही पढ़ा ना हजरत, उसने घुमा के रख दिया। शाह साहब खुद लिखते हैं, अब फरमाते हैं फिर नाई आ गया जी। अब फरमाते हैं हमारे मोहल्ले के जो नाई था ना हजाम, वो हजामत नहीं बनाता था, वो क्या करता था अपनी दुकान के बाहर बैठ के ना रोता रहता था। अब फरमाते जब भी देखा उसको रोते ही देखा। अब फरमाते हैं एक दिन नहीं गुजरा गया, मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा बाबा जी रोते क्यों रहते हैं। अब फरमाते मुझे आगे से कहने लगे शाह जी बड़ा शौक था हज करने का, फाके काटे, पैसे जोड़े, फ़र्ज़ नहीं था लेकिन फिर भी बुलावा आ गया। फरमाते हज कर लिया, मदीना पाक हाज़री थी, सुनहरी जालियाँ थी, ग़ुलाम था, दरूद व सलाम था। कहते बस ऐसी को बेखुदी सी तारी हुई कि ना चाहते हुए भी ना मेरा जी चाहा कि मैं हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम की रोज़ा पाक की सुनहरी जालियों को हाथ लगाऊं। बेखुदी तारी हुई ना। कहते मैंने देखा सामने शुरता खड़ा था, इतना लंबा उसके हाथ में डंडा था। कहते बस नहीं रहा गया, मैंने हाथ लगा ही लिया। कहते वो शुरता भी गैज़ो गज़ब की आग में जल गया और उसने मेरी उम्र का भी कोई लिहाज नहीं रखा और उसने मेरे हाथ पे ना पूरी शिद्दत से डंडा मारा। और कहते डंडे की जो ज़रब थी वो इतनी शदीद थी कि मैं उसकी शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सका। दिल सा घबराया, चक्कर सा आया, आंखें बंद हुई और मैं ज़मीन पे गिर गया। लेकिन कहते जब दो आंखें बंद हुई अंदर की खुली तो क्या देखता हूँ, मेरा सर महबूब खुदा की गोद में है। और कहते हैं वो हाथ जिस पर डंडा लगा है वो हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के दस्ते रहमत में है, और जिस जगह डंडा लगा है दूसरा दस्ते रहमत उसके ऊपर है। और हुजूर मुस्कुरा के फरमा रहे हैं बाबा जी दिल छोटा ना करो, महबूब तक आने फिर डंडे तो खाने पैंदे ने ना है पुत्र। वो तो किसी का एक डंडा भी नहीं रखते है, शर्त है किसी ने खादा होना ली हो उत्थे वेखिया जाना जी पुत्र। वो तो किसी का एक डंडा भी नहीं रखते इधर, लेकिन शर्त है किसी ने खादा होना नहीं। किसी की तलब है ना हो कि मैं डंडा खावांगा तो सारे शहर च धूमां मचणगियां मैं डंडा खादा है। वेखिया जाना जी डंडा साढ़े लिए खादा है कि लोगों ने खादा है, चलो है वेखिया जाना जी। कोशिश करियो पुत्र। मैंने पहले कहा इधर सबक है, मुखातिब में आपसे पुत्र थोड़ा कर लियो, करियो इखलास देना है, थोड़ा कर लियो करियो इखलास देना, उहदे लई करियो। लोग इस लायक नहीं कि उन्होंने छड़ के इन्हां लई कीता जाए, उहदे लई करियो।
फिर वेखो हजरत मैं इससे ज़्यादा बोल नहीं सकता, खुद पकड़ा जाऊँगा फिर हजरत। दिल तो बड़ा करदा हजरत बोलन ते कि बड़ियाँ बड़ियाँ बोल चढ़ा, इतना ही बड़ा है। बड़े बैठे हैं, सादात हैं, उलमा हैं, मैं इखलास हजरत है, इखलास। निकलो पुत्र अपने आप चो, असी फसे दें अपने आप। हजरत ने कह दिया ना दरवेशे दरवेश दरूश अभी कितों हो गए, जिदन अं दरवेश हो गए तो तुहानू लभना सी हजरत जी, ये तुहानू लभना सी कोई। चल बोले उत्थे चलीए जिथे सारे अन्ने, ना को साडी जात पछाणे ना को सानू मन्ने। जिदन दरवेश हो गए नहीं तुहानू लभन लगे हजरत, फिर उस दिन अई होए कोई नहीं तां ही लभन डे। जिदन हो गए हजरत जी फिर असी इत्थे की करना, फिर ते है तन मेरा पुरजे पुरजे जिवें दर्जी दियां लीरां हूँ, इन्हां लीरां दी गल कफनी पा के रलसां संग फकीरां हूँ। फिर इत्थे असीं की करन आना है, ये बस विच ही खलोते हैं। इखलास पुत्र, निकलो अपने आप में से। ठीक है जी, चलो आज 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 कादरी घराने का फ़ैज़ है, ठीक है जी। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह, हुजूर गौसे आज़म रज़ी है, आए आए कुर्बान जाऊँ, आए कमाल था यार। लिखा है कि हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास ना एक आईना था। आप कहेंगे जी एक क्यों था? भाई वो दौर ही एक एक वाला था, ये मशीनी दौर तो नहीं था ना, चीज़ें हाथों से बनती थी, चीज़ें थीं लेकिन थीं कामयाब, थीं नायाब। तो ज़ाहिर है जी शीशा देखना सुन्नत है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, मशाइख आले सुन्नत, उलमाए आले सुन्नत। हज़रत अल्लामा अब्दुल रशीद अवैसी साहेब, हज़रत अल्लामा अब्दुल रशीद अवैसी साहेब, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ठीक है वह पुत्र कस छड़िए ज़रा, ठीक है चलें जी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशा किबला किबला पीर साहब तशरीफ़ ले आए हैं जी। बस बस आखिरी बात गुफ्तगू, ठीक है जी, बस थोड़ी सी तवज्जो जी आपकी। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला, वो लिखा है जी आईना था, आप देखा भी करते थे। तो एक दिन क्या हुआ हज़रत, वो खिदमत करते करते ना वो खादिम से आईना टूट गया। अब वो नमाज का वक्त भी करीब था, हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ज़रा जी वज़ू फरमा के आपने आईना तलब करना था, तो आईना तो टूट चुका था। ये वाला दौर तो नहीं ना जी मोटरसाइकिल निकाली और जाके बाज़ार से नया आईना ले आए, ना ही मोटरसाइकिल थी और ना ही इस तरह बाज़ार हुआ करते थे। अब वो बड़ा परेशान था खादिम कि हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जवाब क्या दूँगा। लेकिन खादिम भी तो देखो ना जी हुज़ूर गौसे आज़म का था, जब चोर भी चोरी करने आ जाए तो जाते हुए कुतुब बन के जाता है। वो तो था ही खादिम जी, जो दिन में कई बार हम नहीं सुनाते यक ज़माना सोहबत बाउलिया बेहतर सद साला ताते बेरया। अब जो हुई हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खादिम, क्या तसर्रुफ़ होगा जी, क्या कमालात होंगे उसमें, जिसको दिन में कई बार हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नाम लेके तलब फरमाया करते, जो दिन में कई बार हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ियारत किया करता। वो लिखा जब हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वज़ू फरमा के आईना तलब किया ना, तो वो ये नहीं कहता कि हज़रत सफाई कर रहा था तो टूट गया। वो आगे से क्या करता, अर्ज़ करता है अज़ कज़ा आए ना चीनी शिकिस्त, हुज़ूर मैं नहीं तोड़या, कज़ा इसी टूट गया। अपने आप को निकाल ही गया, हज़रत ज़ात को ले आया दरमियान, उसने ये कहा ही नहीं कि मैंने तोड़ा। अर्ज़ करता है अज़ कज़ा आए ना चीनी शिकिस्त, हुज़ूर मैंने नहीं तोड़ा, कज़ा आई थी टूट गया। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतने खुश हुए, आपने फिल वदी मिसरा में लाया। वो क्या अर्ज करता है अज़ कज़ा आए ना चीनी शिकिस्त, आपने फरमाया खूब शुद्ध असबाब खुद बीनी शिकिस्त, और चंगा आया टुट गया, ना वेखांगे ना अपना याद आएगा, हुण यार नूं याद करांगे। लेकिन हज़रत जी लेकिन हज़रत जी सुलेमान मिसबाई शीशे च फस गया। ऐदे लिए दुआ करियो निकल जाए। सुलेमान मिसबाई शीशे च फस गया, दुआ करियो निकल जाए। ना फसो पुत्र किते, निकलो हज़रत।
اخلاص حضرت، اخلاص حضرت. پھر دیکھو یہ اخلاص کیا کیا رنگ دکھاتا ہے حضرت. ہاں ہم ٹریک سے میرے بچے اتر گئے ہیں. وہ میرے حکیم صاحب نا وہی پنجابی بابوں کا اپنا انداز آپ فرماتے ہیں بابا ذرا اپنی گڈی ویکھ کھلار کے تے چیک کر مدینے جان ڈئی کہ کتے اور پاسے پا لئی ہے. چیک کرو پتر اپنی گڈی کھلار کے واقعی مدینے جان ڈئی ہے کہ کتے اور پاسے پا بیٹھے ہیں. چیک کرو ذرا. ہاں دیکھو نا وہ کہاں گئیں جی وہ باتیں وہ جو اقبال نے لکھا تھا. آیا آیا اجی ہے ذرا میں بے سورا جی ذرا ہوں سن لئی ہو میں نے. اقبال نے کیا لکھا تھا؟ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. یار اللہ تو بھی تو کدی اپنے آپ ٹیسٹ کر کے تو کی چاہنا ہے؟ کیا ہے تیری چاہ، کیا ہے تیری طلب، کیا ہے تیرا مقصد، کیا ہے تیرا حاصل؟ لا کو ٹیسٹر اپنے آپ بھی کدی. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. اچھا شعر بڑے ہیں جی لیکن مجھے سب سے سونا یہ لگتا ہے، میں یہی پڑھوں گا. اقبال جی اب کیا کہتے ہیں؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو. اور حضرت جی ایک 2021 نقیب دا شعر نہیں، علامہ محمد اقبال دا شعر ہے. ہاں جس کو خود ہی نہیں پتا میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ علامہ محمد اقبال کا شعر ہے جس کی نظر تھی قرآن و حدیث پہ حضرت. اور یہ اقبال کسی حور کی بات نہیں کر رہے، اقبال جنت کی بات کر رہے ہیں. علماء بیٹھے ہیں. حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے اگر کوئی جنت کی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ لے، جنتی حور کا چہرہ اتنا روشن ہے کہ سورج کی روشنی اس کے چہرے کی روشنی کے سامنے مان پڑ جائے. اور اقبال کسی حور کی بات نہیں کر رہے. اقبال کیا کہتے ہیں؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. اوے کاکی ہو، اوے کاکی ہو، دیکھو میرے پتر، میرے بچے ہو، کاکی ہو، دیکھو پتر سارے اپنے اخلاص. یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ قبلہ پیر صاحب تشریف لے آئے ہیں. سارے اپنے آپ کو چیک کریے یار کی جانے ہیں بھلا سی. ٹھیک ہے جی. اللہ سب کی خیر کرے. جتنے سادات ہیں، مشائخ ہیں، علماء ہیں، سب کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے وہ غلطی جو کر گیا تو معافی دے چھڑیے. وما علینا الا البلاغ المبین.